Hello students, welcome back to this class. So today we are going to study our topic which is seafloor spreading theory. Before studying this theory, let's have a quick recap of what we studied in our last class. Right. So under the chapter distribution of oceans and continents, we saw continental drift theory given by Alfred Wegener. Then we looked upon how he told that there was a huge landmass named Pangaea. It was surrounded by a huge water body mass that was Penthrasa. Then this Pangaea got drifted, or we can say it got drifted into many continents, and these continents, as we did see today, was not the same some 200 million years ago, right? So he gave the evidence about the matching of continents. There are rocks of same age across the oceans, like this Appalachian and Atlas Mountains, the Scandinavian highlands. These rocks are of same age, and how are they separated today for miles, right? He told about the tillite deposits of glaciers found in 5 continents named Africa, South America, Australia, Antarctica, right? He told about placer deposits. These placer deposits, he told that they are found at Ghana coast, right? At Ghana coast and Brazilian coast. So these two coasts are today located far away, but they were once part of the same continent, and therefore these placer deposits are scattered. Like as you can see here, this is the Brazilian coast and this is the Ghana coast. So these two coasts are the places where huge amount of gold particles are found, right? So how are they separated today? They might be same about 200 million years ago. He told about this, and fifth he told about the distribution of fossils. Under this, he told that there was a Lemuria land. Lemuria land, it basically means that lemurs are animals which were found at 3 locations named Madagascar, India, and Africa. So now in India we don't have Lemurias, but the fossils of Lemuria has been found in Indian southern continent also, right? It is extinct in India, but it is present in Madagascar region and this Africa. Okay. So he told that Lemuria land. This was the Lemuria land before. So he gave the reasons for force of drifting. That he gave 2 reasons, basically the polar fleeing force and a tidal force. Right. We discussed this in detail in the last lecture. So you can see my last lecture. I will put it in the description. And then post-drift studies came, where convectional current theory was given by Arthur Holmes, and he told that magma is rising up in the lithosphere, and this magma is the reason why continental crusts are moving. So in the post-drift studies, various scientists disregarded this theory, right? And they told that it is not the tidal force or polar fleeing force, rather it is the convectional current force which is the reason for the drifting of continents, right? Then after the Second World War, mapping of ocean floor took place by various countries. The main was the USA. This man, Arthur Holmes, is also a meteorologist only, right? So the mapping of ocean floor took place, and under the mapping of ocean floor, as believed by previous theories and previous scientists, that the ocean floor is flat. But after this mapping, it showed that this is not flat. Rather, it has mountain chains, it has trenches, right? So, and the major finding was about the mid-oceanic ridges present along the mountain. A huge mountain is present along the, you can say, Pacific Ocean or Atlantic Ocean, not majorly in Pacific Ocean, but at some places like the Hawaiian Islands, right? Then comes the ocean floor configuration. In this, we studied about abyssal plains, continental rise, continental shelf, continental slope, and continental break. This is the continental margin. Okay. And then we studied distribution of earthquakes and volcanoes, and we saw that this is the mid-oceanic ridge, how the mid-oceanic ridge is almost parallel to the coast here and here, right? So this mid-oceanic ridge is also the zone of intense volcanic activity, and this mid-oceanic ridge is further
moving down in the Indian Ocean. And in the Indian Ocean, it has divided into two portions. The first portion goes this side and the second portion comes this side. In this map, you can't see, but here this side is the first portion, this side is the second portion, this is the mid-Indian ridge. And this mid-Indian ridge is also the reason for the formation of several, you can say, volcanic activities, and several type of islands are also developing and may develop in the future also, right? So this was our previous class. So today we are going to study in depth this seafloor spreading theory. So because according to this theory, the geomorphological phenomena of faulting, right, silent type of volcanic activity, and creation of volcanic landforms over the fault line and acknowledgement of low magnitude earthquake are very well identified in the Atlantic and the Indian Ocean, right, and the Indian Ocean, right. So he told that it is the under the seafloor spreading theory. He said that जो ओशन है ना हमारा, ये मान लीजिए ओशन है, ठीक है, यहाँ पर ना एक फॉल्ट होता है मान लीजिए. इस फॉल्ट के होने की वजह से जो मैग्मा ऊपर की ओर राइज कर रहे हैं, ये मैग्मा क्या करते हैं ना, ओशियनिक क्रस्ट को ना पुश करते हैं इधर की ओर. So this convective current which is rising in the mantle, which we also say as magma, these are the reason for the drifting of oceanic floor. So he's not talking about continental crust, he's talking about the oceanic crust, right? So he told that oceans are, you can say, moving and they are spreading. Basically, this is what? This is spreading only. If here is a continent, then according to him, the continents are pushed away by the oceanic crust, right? So this is his theory that the oceanic crust is spreading and they are pushing the continents. It's not the continent that is pushing the oceanic crust, right? For this, he provides evidence that, let's have a look about his evidence. He said that composition of rocks, he told about the level of metamorphism, and he told about the magnetic properties. He told that these three things, which if we take all these three things, composition of rocks, level of metamorphism is basically the mineral composition or texture of rock side, and he told that magnetic properties of the materials or of the samples found here is not same which is found at the continental coast. तो यहाँ पे जो मिलने वाले रॉक्स है ना, इनका जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टी हो गया या फिर कंपोजिशन हो गया या फिर मेटामॉर्फिज्म हो गया, इसका टेक्सचर वगैरह हो गया यहाँ के रॉक्स का, ये ना यहाँ के रॉक्स से, ये जो आपका कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट के रॉक से मिलते नहीं है. ये काफ़ी अलग है और ये काफ़ी अलग है. तो इन्होंने अपना ना एविडेंस ये दिया कि भाई यहाँ पर ना कुछ नए क्रस्ट की फॉर्मेशन हो रही है, और ये नया क्रस्ट जो है ना, ये बेसिकली कॉन्टिनेंटल क्रस्ट से बिल्कुल अलग है. टेक्सचर में भी अलग है, मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज में भी अलग है और कंपोजिशन में भी बिल्कुल अलग है. दूसरा इन्होंने क्या बोला ना, इन्होंने बोला कि जैसे कि मान लीजिए, ये फिर से एक बार हम देखते हैं, यहाँ पे मान लीजिए कि ऊपर मैग्माराइज किया है, राइट. सो यहाँ मैग्माराइज कर गया, यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होंगे. तो ये जो वॉल्केनिक इरप्शन हो रहा है ना, बेसिकली यहाँ पे ये कुछ इस तरह से वॉल्केनिक इरप्शन फैल रहे हैं, ऐसे वॉल्केनोस फैल रहे हैं. तो इन्होंने बोला कि जो सेंटर ऑफ ओशियन है, मान लीजिए कि ये अपना ओशियन था, लेट्स से इट वाज अवर ओशियन. सो एट द सेंटर ऑफ ओशियन, विच इज दिस पार्ट, when we move from center towards the coast, right, or when we move from center towards other places, the elevation decreases. What it means, that there might be something here of very great height, that's why the elevation is decreasing when we move away from the center, right. When we move away from the center, the elevation is decreasing.
So he also told about these things. Then he told that allowed some islands have also developed, right, in the central basins of respective water bodies, right. He told that there some islands formation are also going places, going are also taking place, right, in the central basins of these oceans. Then he told that low magnitude earthquake low magnitude earthquakes are also identified in the central of respective water bodies along the fault line, right. So this is what he said about the seafloor spreading theory, right. So as you can see here, this is the molten material which is rising up. This molten material is pushing the oceanic crust, right. Don't look this side. You have to remember for seafloor spreading this side only, right. So he told that this is the reason why ocean floor is spreading, but he is unable to explain that ये ocean floor में नए नए जो क्रस्ट बन रहे हैं, ये क्रस्ट आ कहाँ से रहे हैं, ये नए नए अचानक से बनते कैसे जा रहे हैं। भाई आपका घर ही बन गया और आपको पता ही नहीं है कि ईंट कहाँ से आया या फिर जो सीमेंट्स होते हैं वो कहाँ से आए, ठीक है। तो इन्होंने बोला कि बन तो रहे ये क्रस्ट, लेकिन ये क्रस्ट कहीं ना कहीं जा करके ख़त्म भी तो हो रहे होंगे, और अगर नहीं होंगे ख़त्म तो ओशन तो बढ़ता जाएगा और कॉन्टिनेंट घटता जा रहा है, क्योंकि ये मॉल्टन मटेरियल तो भाई एल्फ्रेड वैगनर ने बता दिया कि भाई ये तो मैग्मा का चैम्बर है नीचे जो अर्थ के, वहाँ जैसे कि आपका हो गया कोर, ये हो गया मेंटल, तो ये मेंटल के अंदर के जो मटेरियल्स है वो बेसिकली हीट अप होते होते निकलते जा रहे हैं और कन्वेक्टिव करंट की तरह ऊपर फैल रहे हैं, ये इस तरह फैल रहे हैं कुछ। तो भाई इनका नया क्रस्ट तो बन रहा है, लेकिन ये नया क्रस्ट सबसाइड कहाँ हो रहा है, इन्होंने इसका जानकारी कहीं नहीं दिया। देन कम्स अवर मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक which is plate tectonics. So this plate tectonic theory was given by, you have to write, mainly it was the Morgan who propounded, but apart from Morgan there were two more scientists known as Mackenzie and the other one is Parker, right. So Morgan, Mackenzie and Parker, they gave the theory of plate tectonic, and this plate tectonic theory has solved every problem which was prevalent earlier, and they took the help of previous theories to substantiate their points. What they said is, भाई ये जो प्लेट टेक्टोनिक है ना, ये मेन रीज़न है कॉन्टिनेंट्स के ड्रिफ्ट होने का या फिर सी फ्लोर की स्प्रेड होने का। इन्होंने सीधा बोल दिया कि प्लेट टेक्टोनिक इज द मेन रीज़न, neither continental drift theory, nor convective current theory, nor sea floor spreading theory. But they took the help of all these theories to substantiate their points, right? So they told that a tectonic plate is a massive irregular shaped solid rock, right? Generally composed of continental plus oceanic lithosphere. And they said that this continental plate is moving horizontally over the asthenosphere as rigid units, right? So there are two types of continental plates, as you can see here also, that there is a Pacific plate. This is the largest oceanic plate on the continent, right? And again there is an Eurasian plate. Earth is round, so इधर से ये अर्थ राउंड होने के कारण कुछ इस तरह से आपका यूरेशियन प्लेट बन जाएगा। तो यूरेशियन प्लेट ना ये बेसिकली एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है। So this is the oceanic plate and this is the continental plate, right? अब इन्होंने ना एक और चीज़ बहुत इंपॉर्टेंट बोली जो कि आपके NCERTs में भी लिखा हुआ है, और वो ये था कि भाई जो अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जगह पर आज फैले हुए दिख रहे हैं ना आपको, ये अलग अलग जगह पर ना, ऐसा नहीं था कि सबसे पहले पेंजिया था। सबसे पहले ना ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अलग अलग जगह पर कुछ इस तरह से ना अलग अलग जगह पर प्रेजेंट थे। फिर ये धीरे धीरे लाइक 540 मिलियन ईयर्स को ये अलग अलग जगह पर प्रेजेंट थे। देन 420 मिलियन ईयर्स को ये क्लोज आते गए, ठीक है, और क्लोज आते आते एक दिन यहाँ पे 300 मिलियन ईयर्स को ये कुछ इस तरह दिखने लग गए, ठीक। फिर उन्होंने बोल दिया कि 120 मिलियन ईयर को कुछ इस तरह दिख रहे थे, और फिर उन्होंने बोल दिया कि आज का जो प्रेजेंट है ना वो ऐसा नहीं है कि पेंजिया से ब्रोक हो गया, लेकिन ये जो आज का जो प्रेजेंस है, ये प्रेजेंस के मेन पीछे का रीज़न है कि ये अलग अलग कॉन्टिनेंट्स अलग अलग डायरेक्शन पर इसलिए ड्रिफ्ट हो रहे थे क्योंकि
आपका जो ये क्या कह सकते हैं इसे हम, प्लेट टेक्टोनिक्स जो थ्योरी है, ये प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी की रीजन से प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग एंड अलग अलग प्लेट्स, डिफरेंट प्लेट्स आर ड्रिफ्टिंग in different direction at different speeds. जैसे कि हमारा पैसिफिक प्लेट हो गया, तो ये पैसिफिक प्लेट का मूवमेंट जो हो रहा है ना आपका, ये पैसिफिक प्लेट इज मूविंग टुवर्ड्स इस वेस्टर्न साइड. At the same time, this Eurasian plate, right? So this, let's say I will teach every plate to you. This Pacific plate is moving this side. At the same time, this John D. Fuca plate, which is an oceanic plate, this Cocos plate, which is also again an oceanic plate, this Nazca plate is also an oceanic plate, but these plates are moving towards their east, and they're subsiding with this, right? Whereas Pacific plate, being an ocean plate also, is moving this side, right? तो ये तो मैं आपको बहुत ही डिटेल में आगे पढ़ाने जा रहा हूँ कि ये पैसिफिक प्लेट और जॉन डी फूका प्लेट और नॉर्थ अमेरिकन प्लेट में कोलिजन कैसे हो रहे हैं और उस कोलिजन के कारण हो क्या रहा है. तो बेसिकली ना हमें ना 3 टाइप ऑफ प्लेट की बाउंड्रीज पढ़ने हैं जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है. पहला जो बाउंड्री है, इसके अंदर सबसे पहला बाउंड्री का नाम है डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री. तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री बेसिकली क्या होता है, देखिए मैं आपको यहाँ समझाता हूँ. तो डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री हमने अभी पढ़ ही लिया, जैसे कि ये जो ओशियन है आपका, या यहाँ पे करंट्स नीचे से ऊपर की ओर राइज कर रहे हैं और ये करंट और एडवेक्शन, ये एडवेक्शन हो रहा है करंट का, यहाँ पे कन्वेक्शन हो रहा है, यहाँ पे एडवेक्शन हो रहा है, और सिमिलरली यहाँ पे सबडक्शन भी हो रहा है. दिस इज द सबडक्शन, दिस इज सबडक्शन, राइट. सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसे ही हो रहा है. तो ये कन्वेक्टिव करंट साइकिल बन रहा है. तो ये ना यहाँ पर ये जो जोन है ना, ये जोन ऑफ डाइवर्जेंस है. यहाँ पर दो जो नीचे से कन्वेक्टिव करंट राइज हो रहे हैं, ये डाइवर्ज कर जा रहे हैं अलग अलग डायरेक्शन में, राइट. तो दिस इज द जोन ऑफ डाइवर्जन. दैट्स वाई इट इज नेम्ड एज डाइवर्जेंट करंट. द सेकेंड वन वॉज कन्वर्जेंट बाउंड्रीज, राइट. सो डाइवर्जेंट बाउंड्री में क्या होता है, डाइवर्ज हो रहे थे प्लेट्स अलग अलग डायरेक्शन में दोनों साइड से, यहाँ पे डाइवर्जेंस हो जा रहा है, एक प्लेट इधर मूव, ये सॉरी मैग्मा इधर मूव कर जा रहा है और मैग्मा इधर मूव कर जा रहा है. अब डाइवर्जेंट में क्या होता है ना, बेसिकली देखिए यहाँ पर ना अगर फॉल्ट रहेगा तो यहाँ से ना ये ब्लो कर देगा फॉल्ट को और यहाँ पर वॉल्केनिक इरप्शन होगा. तो इससे क्या हो रहा है, क्रिएशन ऑफ न्यू क्रस्ट, क्रिएशन ऑफ न्यू क्रस्ट हो रहा है. सो फॉर्मेशन ऑफ न्यू क्रस्ट यहाँ पर टेक प्लेस होता है अगर डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री है तो. वेयर एज अगर ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री है तो कन्वर्जेंट भी 3 प्रकार के होते हैं, जिसमें सबसे पहला है आपका कॉन्टिनेंटल ओशियानिक कन्वर्जेंस. सी यू मीन्स कॉन्टिनेंट एंड ओशियानिक कन्वर्जेंस, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस एंड ओशियानिक ओशियानिक कन्वर्जेंस, राइट. सो दीज आर द 3 पॉसिबल वेज ऑफ कन्वर्जेंस. तो मैं आपको सबसे पहले कॉन्टिनेंट ओशियानिक कन्वर्जेंस पढ़ाता हूँ. So let's say here we are studying कॉन्टिनेंट ओशियानिक कन्वर्जेंस. अब कॉन्टिनेंट ओशियानिक कन्वर्जेंस में क्या होता है कि भाई एक कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये कॉन्टिनेंटल प्लेट है और ये ओशियानिक प्लेट है. अब मान लीजिए कि आपका ये एक हो गया ओशियन, ये आपका एक हो गया ओशियन. यहाँ से मैग्मा ऊपर राइज कर रहा था, मैग्मा वॉज राइजिंग अबव, देन दिस मैग्मा गॉट एडवेक्शन, दिस वॉज अवर ओशियानिक लिथोस्फीयर, और यहाँ से आपका फिर स्टार्ट हो जाता है मान लीजिए कि कॉन्टिनेंटल प्लेट. तो यहाँ पे ये ओशियानिक प्लेट है अपना, ये है अपना कॉन्टिनेंटल प्लेट, राइट. बेसिकली आपको ये याद रखना है कि यहाँ पे आपका ओशियानिक था और यहाँ पे कॉन्टिनेंटल था, ठीक है. मैं लिख देता हूँ यहाँ पे आपको, ये आपका कॉन्टिनेंटल प्लेट. तो होगा क्या ना कि ये जो मैग्मा है ना ये कुछ इस तरह से जाएगा, और जो ओशियानिक प्लेट है, जैसा कि हम जानते हैं कि जो ओशियानिक प्लेट होता है, ओशियानिक प्लेट की डेंसिटी कितनी होती है, 3 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब होती है. और ये ज़्यादा, और ये कॉन्टिनेंटल प्लेट जो होता है इसकी डेंसिटी होती है 2.7 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब.
सो दिस बीइंग डेंसर विल सबसाइड। मैंने बताया था आपको लास्ट में कि जो ज़्यादा डेंसिटी जिसकी ज़्यादा होती है वो हमेशा सबसाइड कर जाता है। सो दिस ओशियनिक क्रस्ट बीइंग मोर डेंसर, what will it happen that this will subside below the continental crust. This is the zone of subsidence. ठीक है, तो ये जो आपके जो करंट्स के मूवमेंट इधर हो रहे थे, ये वो ओशियनिक क्रस्ट इधर मूव कर रहा था, ये कुछ इस जगह पर आकर के सबसाइड हो जाएगा और यहाँ पर ना, इस जगह पर ना एक जोन बनाएगा मैग्मा का। इसे मैग्मा चैम्बर भी कहते हैं। सो जोन ऑफ मैग्मा चैम्बर। तो यहाँ से क्या होगा ना, आप बेसिकली देखिए, ये तो रहा आपका कॉन्टिनेंट, ठीक है। अब इस कॉन्टिनेंट के ऊपर दो चीज़ें हो रही हैं। एक तो ये आपका जो मैग्मा नीचे से ऊपर राइज हो रहा था, ये पुश कर रहा है इस कॉन्टिनेंट को, कुछ इस तरह से पुश भी करेगा। बेसिकली यहाँ पर पुश ही तो कर रहा है। अब ये पुशिंग की वजह से, ठीक है, जब भी आप कोई भी दो चीज़ों को उठा करके दोनों साइड से पुश करोगे, जैसे कि एक पेपर ही ले लीजिए, मान लीजिए आप इस पेपर को जब दोनों साइड से पुश करोगे, ठीक है, तो पेपर के अंदर कुछ इस तरह से फोल्ड्स बनेंगे। ये कंप्रेस दोनों साइड से अगर इसको पकड़ करके पुश किया जाएगा तो ये अगर पुश करेंगे तो कुछ इस तरह से बनेगा। और दीज आर नथिंग बट फोल्ड्स, और यही होते हैं फोल्ड माउंटेन भी। यूपीएससी 2024 प्रीलिम्स एग्जाम में क्वेश्चन पूछे गए थे कि माउंटेन्स कौन कौन से फोल्ड है और कौन कौन से ब्लॉक माउंटेन्स है। तो ये देखिए, जहाँ पर ये ओशियनिक क्रस्ट पुश कर रहा था ना, तो यहाँ पर ना एक फोल्ड माउंटेन्स का डेवलपमेंट होगा। यहाँ पे ये माउंटेन्स फोल्ड होते जाएंगे क्योंकि इसकी प्रेशर से ये पुश होते जा रहे हैं और ये फोल्ड हो जाएंगे। इनके अंदर कुछ इस तरह से फोल्डनेस आएगी। दूसरा क्या होगा ना कि यहाँ पे सारा मैग्मा ना इकट्ठा होता जा रहा है। दिस इज द प्लेस वेयर मैग्मा इज गेटिंग subsided and this is the place where magma is getting stored. So after some time what will happen, this the magma का ना जो एरिया काफ़ी बड़ा होने के कारण ये मैग्मा ना यहाँ से फिर राइज होना चालू कर जाएगा ऊपर, क्योंकि मैग्मा अपने एनर्जी से सबसे ज़्यादा बाहर हो चुका है। अब मैग्मा ऊपर राइज करेगा, यहाँ पे जो क्रस्ट होगा इस क्रस्ट को ब्रेक करेगा, और ब्रेक करने के बाद यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस करेगा। एंड दीज वॉल्केनोस आर मोस्ट डिस्ट्रक्टिव वॉल्केनोस। Basically, these volcanoes are called as stratovolcano. Stratovolcano or composite volcanoes. And these are the zones of intense earthquake activities, right? This is a volcanic mountain. तो दो चीज़ें हो रही है, एक तो यहाँ पे वॉल्केनोस का फॉर्मेशन हो रहा है और वॉल्केनोस के फॉर्मेशन के जस्ट पीछे ना ये आपके माउंटेन चेंज बन रहे हैं। हमेशा याद रखना है कि पहले अगर आप सी से इधर मुड़ेंगे तो सबसे पहले आपको वॉल्केनिक माउंटेन्स मिलेंगे, मेजर वॉल्केनिक एरिया जो होगा यहाँ पे मिलेगा। एंड आफ्टर हैविंग दिस वॉल्केनिक एरियाज यू विल फाउंड अ चेन ऑफ फोल्ड माउंटेन्स हियर, राइट। फोल्डनेस का रीज़न समझ में आ गया आपको। अब हम ना एक एग्जाम्पल देखते हैं, एक्चुअली दो एग्जाम्पल देखेंगे। एक तो हो गया हमारा ये, जैसा कि मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर एक ओशियनिक प्लेट है जिसका नाम है जुआर डी फूका। दिस इज एन ओशियनिक प्लेट। पैसिफिक प्लेट कुछ इधर मूव कर रहा था, जुआर डी फूका प्लेट इधर मूव कर रहा था। सिमिलरली ये जो आपका कॉन्टिनेंट है, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट जो है, ये नॉर्थ अमेरिकन कॉन्टिनेंट का मूवमेंट इधर हो रहा है और जुआर डी फूका प्लेट का मूवमेंट इधर हो रहा है। तो ये ना सबसाइड कर जा रहा है इसके नीचे जा करके। ये 2D फोटो है, मैंने आपको 3D में भी समझाया था कि दिस प्लेट विल सबसाइड बिलो दिस, ठीक है। और सबसाइडेंस तो हो रहा है, ओशियनिक प्लेट जाके कॉन्टिनेंटल प्लेट से टकरा रहा है। ये तो कॉन्टिनेंटल प्लेट है, ये ओशियनिक प्लेट था। अब ये सबसाइडेंस की वजह से यहाँ पे ना 3 जगह पर मेजर वॉल्केनिक चेन्स दिखेंगे आपको, ठीक है। ये 3 जगह पर एक तो वॉल्केनिज्म का फॉर्मेशन हो रहा है यहाँ पर। दूसरा क्या हो रहा है, यहाँ पर रॉकीज माउंटेन्स का भी फॉर्मेशन हो रहा है। ये रॉकीज माउंटेन्स आर बेसिकली फोल्ड माउंटेन्स ओनली, राइट। अब ना ये जो वॉल्केनिज्म जो हुआ ना यहाँ पर, जो यहाँ पे वॉल्केनिज्म हो गया, ये बेसिकली ये जो आपका ये माउंट रेनियर है,
दिस इज माउंट रेनियर, दिस इज माउंट हुड एंड दिस इज माउंट शास्ता, राइट। सिमिलरली यहाँ पर भी ऐसा ही हो रहा है। यहाँ पर आपका जो प्लेट है, जैसे कि आपने यहाँ पे देखा था, अभी कहाँ गया जी, देखिए एक तो है नाज़का प्लेट यहाँ पे, तो यहाँ पे नाज़का प्लेट का कोलिजन हो रहा है साउथ अमेरिकन प्लेट से। यहाँ पे नाज़का प्लेट है, नाज़का प्लेट इज सबसाइडिंग विद साउथ अमेरिकन प्लेट, और यहाँ पर क्या होंगे, यहाँ पर एक माउंटेन चेन बनेंगे जिसका नाम है एंडीज। हियर यू कैन सी हियर इज एंडीज, और एंडीज के ही सामने में ना कुछ जगह पर, जैसे कि यहाँ पे हो गया माउंट कैटापॉक्सी, वॉल्केनिक इरप्शन हुआ है माउंट कैटापॉक्सी। यहाँ पे माउंट है माउंट कैटापॉक्सी। सिमिलरली यहाँ पे माउंट चिम्बोरोजो। सिमिलरली यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शन जो हुआ है ओजस डेल सेलेडो, यहाँ पे वॉल्केनिक माउंटेन है। सिमिलरली यहाँ पे माउंट एकानागुआ हुआ क्या, देखिए यहाँ पे वॉल्केनिक इरप्शंस हो रहे हैं, और वॉल्केनिक इरप्शंस इस जगह पर होंगे, और वॉल्केनिक इरप्शन के जस्ट पीछे आपका एक चेन बनेगा जो कि फोल्ड माउंटेन होगा, और इसका नाम है एंडीज, राइट। अब हमारा थर्ड है कि ओशियन, ये तो हमने पढ़ लिया कॉन्टिनेंट ओशियन कन्वर्जेंस, राइट। ये रहा हमारा कॉन्टिनेंटल ओशियनिक कन्वर्जेंस, ये हमने पढ़ लिया। अब हम पढ़ेंगे कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस। एंड अंडर दिस कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस होता क्या है ना, कि अगर मान लीजिए आपका ये कॉन्टिनेंट है एक, ठीक है, लेट्स टेक अ एग्जांपल ऑफ अफ्रीकन प्लेट। अफ्रीकन प्लेट हो गया, और यहाँ पर था आपका यूरेशियन प्लेट। अगर कॉन्टिनेंट और कॉन्टिनेंट का ही कन्वर्जेंस हो रहा तो जो वो कॉन्टिनेंट जो कि ज़्यादा डेंसिटी जिसकी ज़्यादा हाई रहती है, मान लीजिए कि इसकी डेंसिटी काफ़ी हाई है, या फिर मान लीजिए इसकी डेंसिटी को हम लो कर देते हैं 1 मिनट, और इसकी डेंसिटी हाई रहेगी मान लीजिए, तो ये अफ्रीकन प्लेट ना यूरेशियन प्लेट के नीचे चला जाएगा, क्योंकि इसकी डेंसिटी हाई थी, तो ये इसके नीचे सबसाइड कर जाएगा। जिस प्लेट की डेंसिटी हाई रहेगी वो हमेशा सबसाइड करेगा सामने वाले प्लेट के नीचे, भले वो कॉन्टिनेंट हो, ओशियन हो, चाहे कोई भी प्लेट हो। डेंसिटी मैटर्स हियर, राइट। ज़रूरी नहीं है कि, वैसे तो इन जनरली ओशियनिक जो क्रस्ट होता है उसकी डेंसिटी हाई होती ही होती है, लेकिन अगर दोनों ओशियनिक क्रस्ट रहेंगे ना, तब भी जिसकी डेंसिटी हाई रहेगी वो हमेशा सबसाइड कर जाएगी, ठीक है। तो ये रहा हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट, और ये भी रहा हमारा कॉन्टिनेंटल प्लेट, ठीक है। तो आपको अब देखना है ना कि कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस में ना कभी भी नो फॉर्मेशन, नो ट्रेंचेस डेवलपमेंट होगी, दूसरा होगा नो सबडक्शन, तीसरा होगा यंग फोल्ड माउंटेन का बिल्डअप। जैसा कि मैंने आपको बताया फोल्ड माउंटेन्स कैसे बनेंगे, जब दो आपस में कॉन्टिनेंट्स भी आके टकराएं या फिर ओशन भी आके टकराएंगे, तो यहाँ पर जो माउंटेन चेंज का डेवलपमेंट होगा वो हमेशा फोल्ड होगा, राइट। कॉन्टिनेंट के कन्वर्जेंस में ना कभी भी ना सबसाइडेंस नहीं होता है बेसिकली। देखिए सबसाइडेंस तभी होगा अगर बीच में सी है यहाँ पे, लेकिन अगर यहाँ पर सी का प्रेजेंस नहीं है तो कभी भी ये सबसाइडेंस नहीं होगा, ठीक है। सी रहेगा तो सबसाइडेंस हो जाएगा, और नहीं रहेगा सी, अगर सिर्फ कॉन्टिनेंट है, मान लीजिए कि दो कॉन्टिनेंट ही एक दूसरे को पुश करने लग गए, तो यहाँ पर ना कोई ट्रेंच का फॉर्मेशन नहीं होगा, कोई सबडक्शन नहीं होगा, और कोई यंग फोल्ड माउंटेन नहीं बनने वाले हैं। अब मैं आपको ना एक एग्जांपल दिखाता हूँ। ये तो आपको समझ में आ गया ना कि हाँ भाई कॉन्टिनेंट कन्वर्जेंस के अगर बीच में यहाँ पे सी होगा, जो कि सच में भी था। यहाँ पर आपका पहले के टाइम पे यहाँ पे आपका एक सी हुआ करता था जिसका नाम है 33 सी। तो ये 33 सी जो हुआ करता था ना, यूरोपियन प्लेट या फिर यूरेशियन प्लेट एंड अफ्रीकन प्लेट के बीच में एक 33 सी हुआ करता था, जो कि एक्सटेंड होता था हिमालय के आगे तक भी। आज का जो हिमालय का लोकेशन है ना, वो बेसिकली वो इसी सी के ऊपर ही है, इसी सी के ऊपर ही हिमालय का फॉर्मेशन भी हो रहा है। तो यहाँ पर ना सबसे इंपॉर्टेंट आपको याद रखना यंग फोल्ड माउंटेन का फॉर्मेशन। कोई ट्रेंच नहीं बनेगा, कोई सबडक्शन नहीं होगा, सिर्फ यंग फोल्ड माउंटेन का डेवलपमेंट होगा, जैसे कि आपको मैं दिखाता हूँ एक बार। ऐसे समझते हैं आप।
यहाँ पे समझते हैं। ये अफ्रीकन प्लेट था, ये यूरेशियन प्लेट। अब यहाँ पर ना आपके यंग फोल्ड माउंटेन्स कैसे डेवलप हुए हैं? एक तो यहाँ पे मान लीजिए कि एटलस हुआ है एट मोरक्को, यहाँ पे एटलस माउंटेन का फॉर्मेशन हुआ है। सिमिलरली एटलस माउंटेन के जस्ट इधर ऊपर आएंगे आप तो एल्प्स है, एल्प्स के आगे बढ़ेंगे आप तो यहाँ पे कार्पेथियन माउंटेन हो गया आपका। कार्पेथियन माउंटेन से आप थोड़ा और आगे बढ़िए, यहाँ पे एल्ब्रुस माउंटेन हो जाएगा। ठीक है, एल्ब्रुस माउंटेन के थोड़ा सा नीचे में आपका टाउरस माउंटेन। सिमिलरली थोड़ा सा इधर और आगे बढ़ेंगे आप तो आपको हिंद कुश माउंटेन दिखेगा। और हिंद कुश माउंटेन से आगे बढ़ेंगे तो आपको यहाँ पे हिमालयन रेंज दिख जाएगी। तो ये देखिए, ये जो अफ्रीकन प्लेट था और यहाँ पे जो आपका ऊपर का यूरेशियन प्लेट था, इन दोनों के कोलिजन की वजह से ये ना एक माउंटेन चेन डेवलप हुआ है ये पूरा। ठीक है, ये जो माउंटेन चेन है ना, ये माउंटेन सारे माउंटेन्स ना यंग फोल्ड माउंटेन ही है। ठीक है, ये आपको याद रखना है कि ये सारे माउंटेन ना यंग फोल्ड माउंटेन्स हैं। ठीक, तो ये तो रहा हमारा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस। लेकिन जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर इसके बीच में मान लीजिए कि जैसे कि यहाँ पे सी भी था, ठीक है, यहाँ पर आपका 33 सी था, तो ये 33 सी के होने की वजह से होता क्या है ना कि जो सबडक्शन जो आपका 33 प्लेट रहेगा ये हमेशा सबसाइड कर जाएगा, ये सबसाइड कर जाएगा। ये मान लीजिए अफ्रीकन प्लेट इधर पुश किया, वही इधर पुश करता जा रहा है, तो ये इसका सबसाइडेंस ना कुछ इधर होता जाएगा, 33 सी का सबसाइडेंस होता जाएगा। प्लेट सबसाइड कभी नहीं करेगा, 33 सी सबसाइड करेगा। ठीक है, तो 33 सी नीचे सबसाइड कर गया और 33 सी के सबसाइडेंस के कारण ही आप जैसा कि जानते हैं कि अगर सी सबसाइड कर गया कॉन्टिनेंट के भीतर, तो हम इटली में जानते हैं, जैसे कि ये आपका इटली हो गया, ये आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया मान लीजिए। ठीक है, ये आपका मेडिटेरेनियन सी हो गया, ये आपका इटली हो गया, यहाँ पे एक सिलिसी आइलैंड भी है। तो यहाँ पे ना वॉल्केनिक माउंटेन्स का फॉर्मेशन होगा, जिसमें इटली का आपका एक वॉल्केनिक माउंटेन है जो कि हमने पढ़ा भी था, माउंट स्ट्रोम्बोली है। सेकेंड है माउंट एटना। थर्ड है आपका माउंट विशुवियस। और आपका एक रशिया में माउंटेन है, रशिया में बेसिकली, जैसे रशिया में आपको जो बोल रहा हूँ ना, ये जो एल्ब्रुस एरिया है ना, ये रशिया का सदर्न मोस्ट और आप कह सकते हैं कि साउथ वेस्टर्न मोस्ट पार्ट है। और यहाँ पे ही आपका है माउंट एल्ब्रुस। दीज ऑल आर वॉल्केनिक माउंटेन्स एंड दे आर फॉर्म्ड बिकॉज ऑफ द सबसाइडेंस ऑफ तैथिस सी। राइट, तो ये तो रहा हमारा कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट का कन्वर्जेंस। दिस इज ऑल्सो कॉन्टिनेंट, दिस इज ऑल्सो कॉन्टिनेंट। द नेक्स्ट कम्स अवर ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस। ठीक है, ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस में क्या होता है ना, जैसे कि आप मान लीजिए कि मैंने आपको बताया कि एक पैसिफिक प्लेट है। ये जो पैसिफिक प्लेट है ना, ये फास्टेस्ट मूविंग प्लेट ऑन अर्थ भी है। ये आपका ना 10 सेंटीमीटर मूव कर जाता है एक ईयर में। और इसीलिए कहते हैं कि जो आपका यहाँ पे नॉर्थ अमेरिका है और इधर आपका चाइना है, तो स्कॉलर्स कई बार मजाक में भी ऐसे कह देते हैं कि नॉर्थ अमेरिका ना क्लोज आता जा रहा है, क्योंकि नॉर्थ अमेरिकन प्लेट का भी मूवमेंट इधर ही हो रहा है। ठीक है, अब ये नॉर्थ अमेरिकन प्लेट भी इधर मूव कर रहा है और यहाँ पे चाइना बैठा हुआ है भाई, तो कुछ टाइम बाद में नॉर्थ अमेरिकन प्लेट और चाइना प्लेट हो सकता है कि इन फ्यूचर आफ्टर मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ ईयर्स या आकर के क्लोज दोनों बैठ जाएंगे। हालांकि उसमें बहुत टाइम है। अपन यहाँ पढ़ते हैं कि इसको हटा देते हैं हम। ये जो आपका पैसिफिक प्लेट है, ठीक है, ये पैसिफिक प्लेट इधर आ रहा है कुछ, राइट,
और आप जैसा कि जानते हैं कि जो जापान है हमारा, जापान के अंदर ना बहुत ही तगड़े तगड़े और बहुत बड़े बड़े अर्थक्वेक्स रेगुलर टाइम पे आते रहते हैं। ठीक है, तो एक तो हम देखेंगे कि ये जो आपका पैसिफिक प्लेट है, और मान लीजिए कि यहाँ पे आपके जापान के आइलैंड्स हैं, ये हो गया आपका जापान। ठीक है, जापान के नीचे में यहाँ पर ना आपका ये है एक फिलीपीन प्लेट, ये है आपका फिलीपीन प्लेट, और फिलीपीन प्लेट के बीच में ना ये रिफ्ट बने हैं, रिफ्ट बेसिकली बने हैं। ठीक है, और जिस जिस जगह पर ये रिफ्ट है ना, इस जगह से ना अलग अलग दोनों डायरेक्शन में ना ये जो आपका कॉन्वेक्टिव करंट है वो डाइवर्ज करता जा रहा है, ऐसे समझ सकते हैं। इधर डाइवर्ज कर रहा है, यहाँ पे रिफ्ट था पैसिफिक प्लेट में, और ये दोनों, तो ये जो डाइवर्जेंस हो रहा है ना इसका, एक तो पैसिफिक प्लेट इधर आ रहा है, और दूसरा आपका फिलीपीन प्लेट के कुछ पोर्शन इधर जा रहे हैं, कुछ पोर्शन इधर जा रहे हैं। अब यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे बनेगा दुनिया का सबसे बड़ा ट्रेंच, और इसी ट्रेंच को हम कहते हैं मेरियाना ट्रेंच। देखिए फिलीपीन जो प्लेट है, फिलिपिनो प्लेट जो है ना, दिस प्लेट इज बेसिकली एन ओशियनिक प्लेट ओनली, अरे ये जो पैसिफिक प्लेट है ये ओशियनिक प्लेट तो है ही ये। तो ओशियनिक प्लेट के कन्वर्जेंस में ना वर्ल्ड के डीपेस्ट ट्रेंचेस का फॉर्मेशन हो सकता है। जहाँ जहाँ पे ओशियनिक प्लेट सबसाइड कर रहे हैं, ये बेसिकली कुछ इस तरह होगा, सबसिडेंस कुछ इस तरह होगा। ये कुछ इस तरह सबसिडेंस हो रहा है, ये वाला प्लेट कुछ इस तरह सबसाइड करता जा रहा है, और ये वाला प्लेट कुछ इस तरह है, तो ये भी कुछ इस तरह से सबसाइड कर जाएगा नीचे। तो यहाँ पे बेसिकली क्या हो रहा है, ये फिलिपिनो प्लेट सबसाइड कर जा रहा है, तो फिलिपिनो प्लेट ना ओशियनिक प्लेट के नीचे, ये आपका पैसिफिक प्लेट था। ठीक है, तो ये फिलिपिनो प्लेट जहाँ पे सबसाइड कर रहा है ना पैसिफिक प्लेट के, उसी जगह पे ये आपका मेरियाना ट्रेंच बन रहा है। तो आपको याद रखना है कि ट्रेंच का फॉर्मेशन होगा जो अगर ओशियन ओशियन कन्वर्जेंस होंगे तो। सिमिलरली मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि ये पैसिफिक प्लेट है जो कि आपका ओशियनिक प्लेट था, और ये जापान का जो प्लेट है, ये जापान का कॉन्टिनेंटल जो एरिया है, ये वाला कॉन्टिनेंटल एरिया है, यहाँ पे माउंट फूजी नाम का एक बहुत बड़ा वॉल्केनो है। तो यहाँ पे तो बेसिकली कॉन्टिनेंट और ओशियन कन्वर्जेंस हो गया, इसलिए यहाँ पे माउंट फूजी, और माउंट फूजी जापान का सबसे हाईएस्ट पीक भी है। ठीक है, तो माउंट फूजी का फॉर्मेशन हुआ है क्योंकि पैसिफिक प्लेट ना सबसाइड कर जाता है जापान के नीचे। पूरा पैसिफिक प्लेट नहीं, पैसिफिक प्लेट तो कुछ इतना बड़ा होगा, लेकिन पैसिफिक प्लेट का कुछ पोर्शन है जापान के अंदर सबसाइड करते जा रहा है। दिस इज द मेन रीजन वाई जापान हैज फ्रीक्वेंट अर्थक्वेक्स। ठीक है, तो जापान के अंदर ना अर्थक्वेक आने का मेन रीजन है कि पैसिफिक प्लेट का हो रहा है नीचे, पैसिफिक प्लेट नीचे जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पर एक ताइवान का नाम का आइलैंड भी है एक ऊपर में, यहाँ पे तो ताइवान आइलैंड है। तब ताइवान में अभी रिसेंटली 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक आया था, और 7.5 मैग्नीट्यूड का अर्थक्वेक के पीछे का मेन रीज़न यही था कि जो पैसिफिक प्लेट है ये ताइवानीज प्लेट के नीचे भी सबसाइड करता जा रहा है। इसीलिए ये जो आपका जोन होता है ना, कहाँ है, इधर है, ये जो आपका जोन होता है इसे हम कहते हैं, क्या कहते हैं, इसे हम रिंग ऑफ फायर कहते हैं, क्योंकि जॉन डी फू का प्लेट इधर सबसाइड कर जा रहा है। सिमिलरली यहाँ पे आपका पैसिफिक प्लेट इधर सबसाइड करता जा रहा है। ठीक है, यहाँ पे ओखोस्ट प्लेट भी है आपका, तो ओखोस्ट प्लेट का अलग रीजन है भाई, फिलिपीन प्लेट का अलग है, यहाँ पे कैरोलाइन प्लेट अलग है, ये किसी के नीचे सबसाइड करता जा रहा है। यहाँ पे कैरोलाइन प्लेट के जस्ट बगल में यहाँ पे फिजी प्लेट भी है, जो कि एनसीईआरटी में नहीं दिया, हालांकि नाम नंबर लिखा है। यहाँ पे कैरोलाइन प्लेट के जस्ट इधर फिजी प्लेट है। वही कोकोस प्लेट भी इधर मूव करता जा रहा है। तो यहाँ पे आपके वर्ल्ड के लॉन्गेस्ट माउंटेन चेन का भी डेवलपमेंट हो रहा है। यहाँ पे एंडीज हो गया, यहाँ पे रॉकीस हो गए, राइट। और रॉकीस से पहले वॉल्केनिक इरप्शन भी बहुत हो रहे हैं, तो वॉल्केनिक इरप्शन के कारण यहाँ पे अर्थक्वेक आने के चांसेस ही बढ़ गया। दिस इज द मेन रीजन वाई दिस इज कॉल्ड एज रिंग ऑफ फायर। ये रिंग ऑफ फायर का के पीछे का मेन रीजन यही था कि ये प्लेट्स की मूवमेंट इधर उधर हो रही है। सो दिस वॉज अवर क्लास। सो इन द नेक्स्ट क्लास वी आर गोइंग टू स्टडी what are the reasons for the formation of
Indian formation of, you can say, Himalayas, and where is the movement of Indian plate taking place. छोटा सा लेक्चर है, मैं इसे बहुत जल्दी कंप्लीट करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। और ये बहुत इंपॉर्टेंट भी है, और इसके अंदर हम पूरा पढ़ेंगे कि इंडियन प्लेट का मूवमेंट कैसे होता गया, इंडियन प्लेट किधर था पहले, ठीक है। और इंडियन प्लेट का जो आपका कश्मीर का एरिया है वो काफ़ी हाई पे क्यों है। ये सिमिलरली यहाँ वेस्ट बंगाल के पास है मालदा फॉल्ट कैसे है, ठीक है। यहाँ पे नामचा बरवा से टिल्टेशन क्यों आई है ऐसे, जो यूपीएससी ने पूछा था नामचा बरवा कौन से हिमालय के पार्ट में पड़ता है, उसने गलत दे रखा था कि गढ़वाल हिमालय से, बेसिकली गढ़वाल हिमालय था नहीं वो, ठीक है। यहाँ पे जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ नामचा बरवा है। तो ये, और फिर इसकी स्टिल्टेशन ऐसे क्यों है, और कैसे हम ये बोलते हैं कि जो आपका ये है आपका basically this is our Andaman and Nicobar Island. So Andaman and Nicobar Island is also a part of Himalayas. How? Right. तो हिमालय का जो टिल्टेशन है कुछ इस तरह, हम आपको डिटेल में पढ़ाएंगे इंडियन प्लेट के बारे में टिल देन। और ये हमारा लास्ट एक रह गया था अपना ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज। ट्रांसफॉर्म बाउंड्रीज आर दोज बाउंड्रीज वेयर नाइदर न्यू क्रस्ट इज क्रिएटेड nor new crust is destructed, ठीक है। बाउंड्रीज ट्रांसफॉर्म हो जाती है, न तो नाइदर न्यू क्रस्ट बन रहा है और ना ही न्यू क्रस्ट का डिस्ट्रक्शन हो रहा है, ठीक है। यहाँ पे तो डिस्ट्रक्शन भी हो रहा था, और कई जगह तो हमने देखा कि भाई क्रिएशन भी हो रहा है, जैसे कि कुछ आपका ये कॉन्टिनेंटल कन्वर्जेंस के बीच में अगर यहाँ पे सी रहता है तो यहाँ पे नया कन्वर्जेंस भी आपका नया क्रस्ट भी बन रहा था, जैसे कि वॉल्केनोज बने थे जो आपके इटली में थे, या फिर इंडोनेशिया में भी बहुत सारे वॉल्केनिक इरप्शंस मेनली इसी वजह से ही हुए हैं। कॉन्टिनेंट का ही कन्वर्जन वहाँ पर भी कुछ छोटे छोटे जगह पर हो रहा है। सिमिलरली हमने ओशियानिक में भी देखा कि यहाँ पर नए ट्रेंड्स बन रहे थे, राइट। सो थैंक यू गाइज। In the next class, we are going to study about Indian plate. If you like this lecture, please give me a like button. Right.